Are we on board? Yes. So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have Muslim, my batchmate, with me. Today, we are talking about like MBBS in Bangladesh versus MBBS in Uzbekistan. What is MBBS like in different countries? Different country like Uzbekistan and in Bangladesh. What is the difference between subjects in different semesters, in different profs, or how it is like how to survive in Uzbekistan, how to survive in Bangladesh, what is the major difference, how these subjects are treated there, what books they use, and what books we use. So let's start. How are you doing? Walaikum assalam. I'm doing great. And what about you, my dear friend? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और आई एम रियली सॉरी हमारे 2 पॉडकास्ट ज़ाया हो चुके हैं। उस दिन हमने 2 किए, आज हम फिर से कर रहे हैं और आज हमारे गेस्ट हमारे साथ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आई वाज वेरी एक्साइटेड बट आफ्टर ऑल वी हैव टू कंटिन्यू भाई। सो Exactly, not a problem. ओके लेट्स Let's स्टार्ट। start. Let's begin the show. ओके फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, which country is best for MBBS in 2026? So you have like two things for this. If you compare the quality of education, money shouldn't be a factor at all. If you are strictly on budget, then firstly you should look for the money you have and the money you are willing to spend. Okay. After that, आप सोच सकते हो कहाँ पे कैसा क्या लेना है. Okay. So if we talk purely based on money, like we assume you have a lot of money, your parents have done pretty well in their life. Okay. So first and foremost, your option should be Bangladesh based on the money. Based on money. Like reason इसमें क्या है वो आप सर एक्सप्लेन कीजिए because you are from Bangladesh. But मैं दूसरे point of view से अगर बताऊं कि आपको एक ऐसी कंट्री चाहिए, आपको एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ पे आप अफोर्डेबल प्राइस पे अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही डिग्री आपको हर कंट्री हर कॉलेज से लेनी है. डिफरेंस बस इंडिविजुअल पे आता है और एक एनवायरनमेंट पे आता है कि आपको पढ़ने का एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, आपकी फैकल्टी कैसे, आपके टीचर्स कैसे हैं, और आप खुद कितने हार्ड वर्किंग हो, आप कितना एफर्ट्स डाल सकते हो, वो सब मैटर करते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट बजट फ्रेंडली ऑप्शन, इट इज ऑब्वियसली उज्बेकिस्तान, जहाँ पे आपको एक बहुत क्वालिटी एजुकेशन एकदम वर्थ इट प्राइस पे मिलेगी. ठीक सेम अगर मैं भी इस क्वेश्चन का जवाब दूं, जैसे मुझे मेरे मेंटर्स ऑफ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन इन आकाश, आई टेक्स्टेड योर अंकल, आई टेक्स्टेड one of our chemistry professors in the reputed institution. He suggested me, if money is not an issue, you can go to Bangladesh. I was comparing between, shall I invest this in a business or should I go with MBBS? So he said, you have already invested in years in this curriculum like NEET or 11th 12th, so you should continue with MBBS and it will definitely be worth it, and then you can continue with business or like part and parcel of this curriculum and this course. Afterwards there is hospital, there is you will invest 13 years or whatever the years, but definitely it will be worth it. So is MBBS abroad worth it or not? So this is again a very good question, and it has a lot of like point of views. There can be a lot of answers to this question as well. So is MBBS abroad worth it? It really depends upon the student himself. Like अगर वो बच्चा हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है, that is the most important thing. If he is willing to sacrifice everything, live away from his family and his friends, then put in all the hard work to survive first of all in that other country, and secondly like फिर पढ़ाई भी उसी लेवल की करने की, like see, MBBS abroad is just an alternative path to you. Like if you are doing MBBS in India, it's just an alternate path, but both of you meet at the same point again after 5 or 6 years. That is same, you are appearing for NEET PG for your examination, or you are appearing for a respective public service commission exam to become a doctor. It's the same. Yes.
सो डिपेंड करता है यही, अगर आप एफर्ट लगा सकते हो, अगर आप पैशनेट हो, और अगर आप खुद के लिए डॉक्टर बनना चाहते हो और फिर आप वो अपनी ड्रीम लाइफ फुलफिल कर रहे हो, आप लाइक हर एक सेक्रीफाइस कर पा रहे हो, और लाइक इट्स नॉट योर पेरेंट्स विश और समथिंग एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। हाँ, जो फिर लाइक पेरेंट्स के ज़ोर से या ज़बरदस्ती लाया जाता है ना इन कंट्रीज़ में, हु डिमांड द हेल आउट ऑफ यू, सो फिर वो दूसरे को ही गालियाँ दे रहे होते हैं, उस डिग्री को और उस जगह को या कुछ भी, उसको ही गाली दे रहे होते हैं। हर एक को, उस एनवायरनमेंट को, उन क्लासेस को, उस गाड़ी को, उस टीचर्स को, उस रास्तों को, They even don't दुकान care वालों about को, the money एवरीबडी। their parents have invested on this. They just care about their comfort zone. They don't want to get out of comfort zone. जो पेरेंट्स के भरोसे आएंगे, then they are gonna blame everything, like तुझे गालियाँ, मुझे गालियाँ. Not talking about that, guys. Why that? They are just 1 to 2% of the population. Okay. उसके बाद सॉरी क्या हुआ? लेकिन कौन है 1 to 2% ऑफ पॉपुलेशन? जो ऐसे लाइक गाली देते हैं फिर डिग्री को या प्लेस को. ओके, तो कैन आई प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर स्टडीइंग अब्रॉड? Absolutely. If your university or your college like is NMC recognized, or like this WHO, WDOMS recognized, so you have no problem. You'll get, like NMC ka rules and regulations ये कहता है कि if the country and your college gives you permission to practice locally, you can practice back in India as well. So just आप अपना FMG exam clear कीजिए and you are good to go. Same in case of Bangladesh. If you clear the IMGs, you are just good to go in every country. If you clear the MCI in India, you are good to go in India as well. So not an issue at all. Do I need to study MBBS abroad? No, actually you don't need, but some universities have their own interview exams which you should be passing, and certain criteria like 12th में आपको 50% होने चाहिए or more in PCB. Rest you require NEET only so as to appear in FMG exam to be eligible. That So is the if you are criteria planning for to MCI. come back, Exactly. That is the criteria Exactly. for MCI, so that a person or a medical student is eligible to practice in India. Okay. exactly. Then what is the minimum NEET score required? So it's like it stays between 130, 140 to 200. It's never been more than 200. हाँ, I guess बस so. क्वालिफाई करो बायो पढ़ के. 160 to, let it be 160 to 200. उससे ज़्यादा तो मैंने भी नहीं देखा है, उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ. Exactly. Which countries are recognized by the National Medical Commission? So actually they don't recognize necessarily countries, but they recognize universities or colleges, whatever you think. And वो ऐसे नहीं डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करती है NMC किसी को भी. जब WHO के स्टैंडर्ड्स को यूनिवर्सिटी मीट कर पाती है, उसके बाद जब वो WDOMS वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद जब वो NMC के जो सेट ऑफ गाइडलाइंस है उनको ओबे करती है कि लाइक पूरा कोर्स जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए, कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए मतलब 5 years. उसके बाद there should be course and there should be 1 year internship compulsory जो आपको FMG exam clear करने के बाद वापस देनी है. And the course should not be less than 5 years because like I have seen many people having like degrees very less than 4 years. They get it completed very very fast. हाँ वो So है. इन्हीं सब के लिए regulations है. हाँ, और Regulations several meet months हो रही है, so your university is several months are recognized. required to stay in the college. Exactly, 54 months in across 6 years, so it's 9 months per year तो that you should be staying in that country. Exactly. Then which country? Okay, it is done. Is the degree valid in India? Absolutely. अगर NMC guidelines follow हो रही है, meet हो रही है और आपको practice करने locally opportunity मिल रही है, permission मिल रही है, so your degree is also valid here. Okay.
बट इट इज मोर और लेस कि अगर आपका एफएमजी निकलता है इन सब के बाद तभी आपकी डिग्री वैलिड है, अदरवाइज यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज अ डॉक्टर इन इंडिया। लाइक प्राइवेट प्रैक्टिस तो हो ही सकती है। आई डोंट थिंक सो, नो। I have heard some प्राइवेट भी cases नहीं कर they are सकते doing like क्योंकि privately without MCI. नो नो नो, नॉट पॉसिबल, Okay. सवाल ही नहीं होता। क्योंकि इसमें ना जैसे एफएमजी क्लियर होता है उसके बाद कुछ रजिस्टर्ड होते हैं अंडर डॉक्टर्स MCI. काउंसिल किन Of कुछ, course, जब of तक वो course, नंबर of course. मिलेगा ही नहीं, Like यू in कांट Bangladesh, प्रैक्टिस it is प्राइवेट। Bangladesh Medical and Dental Council. Same, it is an MD as एग्जैक्टली, well. बीएमसी, Okay. Like here, इट्स BMC in बीएमसी। Bangladesh. Nee, it हाँ, is Bangladesh Medical. Like I will, if my professors are not gonna say it, they're gonna kill me for this. Like, but it is like this Bangladesh uh, Medical and Dental Council. ओके, बीएमसी इज लाइक बॉम्बे म्युनिसिपल कमिटी। And don't talk like this. I'm gonna be restricted. Like, कट करना बीच में से, कोई मसला नहीं। like, let me just confirm this because it is a Viva. ये Viva का question है भाई. Bangladesh Medical and Dental Council. I told you it is BMDC. Okay, let's continue. ओके, Which countries are valid in India? What is the total cost including hidden expenses? so there are actually, if you directly go to a certified and verified consultant, like I'm talking about a contractor, Okay. okay, By you are not contractor, going to by some contractor, agent. what do you mean? Okay, like consultants which Okay, are present in so मैं पूरा India or framework, Kashmir. हाँ मैं समझाता हूँ फ्रेमवर्क क्या है। Okay. जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं, नमनगंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो हमारी यूनिवर्सिटी के लिए देयर आर अराउंड आई गेस 200 to 300 एजेंट्स हु वर्क इन इंडिया। सो वो क्या करते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जो इंडिया, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स मींस लाइक हु इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, Okay. वो क्या करते हैं, वो यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि वी विल ब्रिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम In number of डिफरेंट students. कंट्रीज। Okay. हाँ, एग्जैक्टली, वी विल ब्रिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर कंट्री और एनी अदर नेबरिंग कंट्रीज टू स्टडी इन योर यूनिवर्सिटी। Okay. So you have to provide us these facilities against this money which we will provide you. So they are contractors. ठीक. अब इन कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक दे आर एक्सक्लूसिव पार्टनर्स टू द यूनिवर्सिटी। Universities. उनके बगैर आप बाईपास करके एडमिशन नहीं कर सकते हो। एवरीथिंग, एवरी स्टूडेंट दैट कम्स इनटू द यूनिवर्सिटी कम्स थ्रू देम। ठीक. फिर इन्हीं के मतलब छोटे छोटे जो ये होते हैं ना, मतलब एडवर्टाइजर्स एंड पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इन हायरिंग और हु एक्चुअली गो to find students and whom students can directly contact and visit their offices, they are called as agents. So आप एजेंट का अगर पाथवे स्किप करके डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाओगे, there are a lot of means, like you should be active on social media, you know each and everything, you can directly visit universities websites and Instagram handles and other things, or you can, देखो बेस्ट अप्रोच इसमें यही रहता है, आप किसी स्टूडेंट को मिलो, वो आपको चीजें समझाएगा। देखो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लाइक एवरीबडी इज आफ्टर मनी, लाइक सम पीपल आर एक्चुअली वेरी गुड, दे विल ट्राई टू हेल्प यू, और वो आपको एक रियलिस्टिक फीडबैक देंगे, सच्चा सच्चा एकदम, कि यूनिवर्सिटी एक्चुअल में कैसी है, हॉस्टल कैसा है, क्या आप सरवाइव कर सकते हो। ऐसे ही 2-3 लोगों को ढूंढ लो, मतलब इट्स वेरी सिंपल, यूनिवर्सिटी के पेज से 2-3 लोगों को आप ढूंढ लो, उनके साथ कांटेक्ट करो। जब आप 5-6 लोगों की राय सुनोगे ना, इट विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, बट एक अल्टीमेट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दोस 5 पीपल। So that is how you will save on your money that you have to pay your agent, और आपकी जो डायरेक्ट ब्रोशे पे फीस होगी वही आप पे करोगे। Okay. वरना उसके बगैर you have to pay extra to agents that are in like एग्जैक्टली, कुछ भी फालतू का एक्सपेंस दिखा देंगे, मेडिकल एक्सपेंस, प्रॉफ फीस। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है सीन, हमारे यहाँ मतलब हमारी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली, देयर इज नो सेपरेट फीस। You pay some amount at the beginning of the first year, that is $7,750, and for the rest of the years you pay $5,350 for the next 5 years continuously, one after another. So there is no hidden expense or something. Lekin against it, if you come through an agent or something, I'm not telling every agent is corrupt or something, but mostly it happens like they also draw their commission. देखो, कोई आपको 1 साल, मतलब अगर
किसी के हाथ आप लग ही गए हो अच्छे से, तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके 5 साल 6 साल निचोड़ेगा ना भाई, उसका भी घर चलाना, इट इज उसको अंडरस्टैंडेबल। अब अगर कोई बीच में रहा फिर उसको उस पर एक्सपेक्ट करना कि वो कुछ चार्ज ही ना करे भाई, ये भी गलत है। लेकिन अब बांग्लादेश के लिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन ले लिया, उसके आपने कोई कॉलेज सेलेक्ट किया, शॉर्ट लिस्ट कर लिया, आपके लिए बांग्लादेश में कोई पढ़ रहा है, उससे आपने कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, आई ट्राई टू गाइड देम विद माय ऑनेस्ट ओपिनियन। मैं उसमें कोई नहीं रखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे इस कॉलेज से इतना मिलेगा, इससे मिलेगा। आई एम नॉट पेड बाई पेड स्पॉन्सरशिप, लेता हूँ ब्रांड से बस, और उससे कुछ नहीं। तो आई एम नॉट पेड बाई एनी कॉलेजेस और सम एजेंट्स। हाँ, मैं अपनी जगह से दिल से ही कहाँ यू कैन सर्वाइव, या डाका में देखो, या जो भी मैं करता हूँ, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम like for guidance. So I guide on Instagram. I put your link on X profile. You come there, we will have a call. एंड बाकी क्या होगा, अब कहने का घर से होता क्या है, यू गो टू ए कंसल्टेंट कश्मीर में कहीं भी, ही गाइड्स यू कि ये कॉलेजेस हैं, और अपनी ही रैंकिंग, ये टॉप है, ये है, ये है, अगर यहाँ जाओगे ज़्यादा कुछ स्कोर होगा, मतलब ज़्यादा स्कोर है तो ये वाला कॉलेज है, अगर उससे कम स्कोर है तो ये वाला कॉलेज है, ये वाले कॉलेज की ज़्यादा रिकग्निशन है बांग्लादेश, ये ना सॉरी इंडिया में, फिर या MCI में या NMC में। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, पेशेंट फ्लो बोलते हैं कि पेशेंट फ्लो देखो, पेशेंट फ्लो कहाँ कैसा है। उसके बाद नई चीज़ है कि पेशेंट फ्लो देखना पड़ता है, वो देखना पड़ता नहीं, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। बांग्लादेश इज़ हाईली पॉपुलेटेड, एवरी हॉस्पिटल हियर इन बांग्लादेश हैज़ इनफ एंड इनफ पेशेंट्स, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, इनफ पेशेंट्स और इनफ पेशेंट फ्लो। इनफैक्ट हमारे कॉलेज में दिन में चलने की जगह ही नहीं होती, इतने पेशेंट्स, रोज़ कोई ना कोई OT होती रहती है, इनफैक्ट छुट्टी के दिन भी कोई OT होती है। अब कहने का गर्ज है कि फॉर एग्जांपल एजेंट क्या करता है, उसको किसी कॉलेज से स्पेसिफिक ज़्यादा कमीशन मिलता है, वो दिखाता है। एग्जैक्टली। वो दिखाता है, वो बोलता है स्टूडेंट वहीं जाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, कोई हमें कांटेक्ट करता है, हम बोलते हैं नहीं, फॉर एग्जांपल आप बताओ आपका बजट, आप बताओ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कॉलेज से, मैं आपको बताता हूँ कॉलेज कौन सा ठीक है, आप सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं। जैसे रिसेंटली बिफोर दिस पॉडकास्ट आई वॉज डूइंग द सेम थिंग विद अ गर्ल और समथिंग, कोई था जो घर से कॉल कर रहा था, मैं उससे सेम बात कर रहा था, तो मैं उससे यही बात कर रहा था कि आपको क्या बजट है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर शी वॉज जस्ट शी कन्फर्म दैट हाँ अब मैं सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ से ही मैंने डायरेक्ट बात की, तो वो कह रही थी कि अब मैं सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि कंसल्टेंट मुझे यही 3 दिखा रहा था कॉलेज। मैंने कहा नहीं, ये 3 से इनको निकालो, इन 3 से अब एक को देखो, ये मेरा कॉलेज है, ये इसका कॉलेज है, इसका इसमें ऐसा, तो डू दिस। उसके बाद वो कंसल्टेंट्स क्या करते हैं फिर क्या नहीं करते, वो दीगर सवाल है, वो हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे खुद को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं करवानी, वो हम बाद में बात करेंगे इन DMs और वट एवर विल बी द मीन्स। तो उसके बाद विच कंट्रीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस इज द डिग्री वैलिडेड इंडिया। अच्छा, हिडन एक्सपेंस, अच्छा फ़ीस के बारे में मैंने बोला ही नहीं। फ़ीस ये रहेगा कि लाइक 40, इस टाइम कम हो गया आफ्टर दैट PM वाला इंसिडेंट बांग्लादेश में। उसके बाद आई गेस 35,000 USD से लेकर 50 USD तक यू विल गेट ए गुड कॉलेज इन ढाका, और फिर उसके ढाका के बाहर यू विल गेट द कॉलेज इन द सेम लाइक अमाउंट। तो उसके बाद हमारा भी in Uzbekistan it should be around like $30,000 if anybody charges you more, or like I'm considering if you are like staying in the hostel as well as you are paying for the mess, उस सारे का मिला के it should be around $30,000 including visa extension and police registration, like everything except for your personal expense and आपका एयर फेयर की टिकट, लाइक एयर टिकट, उसके बगैर इट शुड नॉट एक्सीड लाइक 30,000 और 32। In Bangladesh, it is like जो college will charge you like 30,000 to 50,000 USDs, उस USD, और उसके बगैर the mess fee depends upon college, if the college is offering in that fees or not. Like electricity fee of coolers or ACs, that will be separate, depends upon college. Hostel fee if included, otherwise separate, depends upon college. So it is like for air tickets that are personal, or the renewal Exactly. of visa, that is free for Bangladesh, and like from here it is free, not from India. Then if you renew it here it is free, not from India. Then green card you have to renew it every year after renewing your visa, so you have to do that.
So what is the total cost? And hidden expenses in Bangladesh are like prof fees. Prof fees in Uzbekistan, see, he's saying it is zero, but in Bangladesh, hidden expenses include like this: AC fees. Consultants will not tell you; they won't. Hostel fees, yeah, they will tell you hostel fees, and confirm from the student studying in Bangladesh that that particular college has AC, coolers, or what facilities are there for ventilation or for cooling purposes, because in Bangladesh without AC it is literally torture, torture, torture. So उसके बाद continuing with hidden fees, prof fees depends upon subject. 3 subjects you have to like prof registration fees is separate, you have to pay at the time of prof. Apart from that, hidden fees is like this AC fees, nothing more than that. अब एक सवाल मेरा भी, like if somebody fails, फिर उसमें उस केस में भी फीस देना पड़ता है क्या? Like if somebody fails in Bangladesh in professional examination, so he should like he has to pay again that prof registration fees, like supplementary examination registration fees in the subject he has failed. Like if he has failed in 3 subjects in the first prof examination, he will be charged again. If in one subject, he will be charged accordingly. ना हमारे वहाँ पे like ऐसा सीन रहता है कि it depends upon the credits of the subject, and then for each one credit you pay some dollars, like $60 it should be, but to be honest with you, in our university there is no such system as paying this. But in Uzbekistan it is everywhere, in Kazakhstan, Kyrgyzstan, all these former USSR countries, there is a system which is very corrupt actually, because the teacher will want to ask money from you, but in our university never ever it has happened. Like there is like teacher taking or extorting money from the students. It's all thanks to our contractor, like he's not trying to exploit the children, and he has saved our students from this. तो फेल सिनेरियो में ना ऐसे ही थोड़े टाइम बाद कुछ पनिशमेंट दे के उनको री एग्जाम लेने देते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, ऐसा सीन है. Maybe in future it changes, but till now it is like that. Which consultants can be trusted? जो आपको क्लियरली दिख जाएंगे इंस्टाग्राम पे, जब आप यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज खोलोगे ना इंस्टाग्राम पे नॉर्मली, तो आपको जो दिखेंगे, मतलब देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स व्हिच आर एसोसिएटेड. लाइक अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी का पेज खोलोगे, नमंगन स्टेट यूनिवर्सिटी, तो आपको वहां पे बड़ा बड़ा मिलेगा हर जगह, इन एसोसिएशन विद किम्स MBBS प्राइवेट लिमिटेड. Similarly for other universities also there are particular groups which are associated, but I will not tell you about those universities because like कुछ defamation case ही डाल दिया उन लोगों ने कि अच्छा नहीं बोला या बुरा बोल दिया. So I am not taking any risk of any universities, but हर एक यूनिवर्सिटी हर एक कंट्री की उनको ऐसा ही सीन होता है. Mostly it is done by Indian people, obviously, because Indian people, you know, are very brilliant at business. समीर रैना ने बहुत अच्छी एक बात कही है कि कश्मीरी हमेशा क्रॉस फायर में ही मरता है, और क्रॉस फायर करने वाला कश्मीरी ही होता है. तो जो क्रॉस फायर हमें करता है ना, इस बीच वो कंसल्टेंट ही होता है, वो कश्मीरी ही होता है. तो जैसे मैं वो एजेंट होता है. हाँ, आई एग्री. इन केस ऑफ बांग्लादेश, लाइक कंसल्टेंट्स कैसे चूज करो? लुक फॉर पीपल जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है बांग्लादेश में, उनको किस कंसल्टेंसी ने एडमिशन दिया, वो किस कंसल्टेंसी के थ्रू गए, और वो कैसे किस प्रोसेस से गए. लुक फॉर दैट. उसके बगैर भी इफ़ यू लाइक फ्रेंड्स, वाले साहब के फ्रेंड्स या इन कनेक्शंस कोई फ्रेंड्स है विच हु कैन बी ट्रस्टेड, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए हैं कि आपने किसी कंसल्टेंट पे ट्रस्ट किया, उसने आपको बांग्लादेश भेजा मगर उस कॉलेज में नहीं जिस कॉलेज में आपने चाहा था, यानी कि एडमिशन आपको दिखाया किसी और कॉलेज का, भेजा कहीं और. आपने उस कंसल्टेंट को पे किया लेकिन उनके अपने अकाउंट में, और उसने उस अकाउंट के में जो पैसे आए थे वो खाली, कॉलेज तक कुछ पहुँचा नहीं. कॉलेज आपको प्रॉफिट टाइम हो रहा है भाई, फीस आपने फीस नहीं, अब बोल रहे हमने तो दे दिया कंसल्टेंट को, कंसल्टेंट भाग गया, फरार. तो कंसल्टेंट और दूसरा कंसल्टेंट आपको कॉलेज भेजता है जिस कॉलेज में उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा. रेफर टू स्टूडेंट जो आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी बताए कि आप उस कॉलेज में जाओ जहां आप सर्वाइव करते हो. दे वोंट वांट यू टू हैव एस्केप टाइम इन बांग्लादेश, बट इवेंचुअली यू नीड द एस्केप टाइम इन दिस डिग्री, अदरवाइज यू आर नॉट गोना सर्वाइव. आई कैन बेट फॉर इट.
स्ट्रांगली एग्रीड। उसके बाद शुड आई अप्लाई डायरेक्टली और थ्रू ए कंसल्टेंट? डायरेक्टली अप्लाई कीजिए आप, लाइक मैंने वही कहा ना, लाइक स्टूडेंट के थ्रू इट्स द बेस्ट अप्रोच, be it student or directly through the contractor or their Instagram handles, their social media handles, you should go through them और वेरीफाई करो भाई, अच्छा खासा टाइम दे दो थोड़ा सा, मतलब एक आध हफ्ता। लाइक जैसे आपको अगर फोन कोई शॉपिंग पे जाना है, फोन शॉप करने, सो ये थोड़ी होगा कि रैंडमली दुकान पे गए, जो पसंद आया उठा लिया। भाई इतना रिसर्च इंसान करता है, इसका प्रोसेसर, इसका कैमरा। तो आप जो आपकी लाइफ का सबसे क्रिटिकल डिसीजन है, आपका पूरा करियर जिस पे डिपेंड करता है, पूरी लाइफ, इसके लिए आप क्यों नहीं रिसर्च करोगे और आप क्यों किसी रैंडम बंदे पे ट्रस्ट करोगे अपनी लाइफ के लिए? आप जस्ट 2 सेकंड सपोज करो, मैं आपको एक इश्यू समझाता हूँ होता क्या है। आपने किसी XYZ एजेंट पे ट्रस्ट किया, उसने आपको किसी कंट्री भेजा, अब आप देख रहे हो जो उसने आपको वीडियोस दिखाए थे या कुछ, वैसा कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। Exactly, that happened with me. अब आप पैसे भर दिए, अब माँ बाप को क्या मुंह दिखाओगे? एक्सपेक्टेशन है। और मतलब आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मोस्ट ऑफ अस आर। एक अमाउंट देना, एक सर्टन पैसे का अमाउंट देना, वो बहुत एक बड़ी बात होती है। और दूसरी बार सेम वही अमाउंट देना, इट टेक्स लाइक, ask your father, sit down with him someday and ask him how he earns. अब अगर वो आउट ऑफ वट एवर वो नहीं कहेंगे, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें तो इतनी समझ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हाउ स्पॉइल्ड आर यू भाई, हाउ स्पॉइल्ड आर यू आर एक्सपेक्टिंग कि चेंज दिस, हाउ स्पॉइल्ड आर यू। मैं एक चीज़ कहूँगा, आई नो मैंने अपने पे ले लिया, चलो मैं अपना ही बताऊँगा कि फॉर एग्जांपल हुआ क्या, एक कंसल्टेंट था, फॉर एग्जांपल लेट इट बी ए स्टोरी, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, दूसरे का बताया वो भी डिफेमेशन केस लगा दिया ये भी एक मुसीबत है। तो हुआ क्या, उसको बताया कि XYZ कॉलेज में एक अच्छा कैंपस है। अब मैंने वो अच्छा कैंपस, मतलब बड़ा कैंपस है कंपेयर टू एक XYZ कॉलेज, मैंने वो बड़ा कैंपस कैसे ले लिया कि वो लिटरली बड़ा कैंपस है। इनफैक्ट इन ढाका में मिलना बड़ा कैंपस बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। क्यों है बहुत ज़्यादा मुश्किल? क्योंकि यहाँ कंजेस्टेड एरिया है, दिल्ली से ज़्यादा कंजेस्टेड मुझे लगा है, और हाईली पॉपुलेटेड, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ ज़मीन मिलेगा ही नहीं तो एट फर्स्ट। अब हुआ क्या, मुझे लगा फॉर एग्जांपल कि वो बड़ा जब मैं यहाँ मतलब आया एक कॉलेज में, नीचे कॉलेज ऊपर हॉस्टल, भाई मैं एट फर्स्ट मैं पापा को देख रहा हूँ, पापा मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा इससे अच्छा मैंने क्यों नहीं ऑन ग्राउंड रियलिटी किसी स्टूडेंट को ही वहाँ पूछा भाई हो क्या रहा है, मैंने क्यों ट्रस्ट किया किसी कंसल्टेंट पे। इसीलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट कंसल्टेंट्स, प्लीज़ रेफर टू स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली लिविंग देयर। प्लीज़, कंसल्टेंट बताएगा क्योंकि उसको कमाना है, उसको अब कैसे कमाना है, झूठ बोल के या सच बोल के, दैट इज़ हिज थिंग। लेकिन एटलीस्ट रेफर टू स्टूडेंट्स, कम से कम एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स हैं हु फेल्ड इन फर्स्ट प्रॉफ एग्जामिनेशन क्योंकि वो रिकवर नहीं हो पाए। उनको कहा गया यहाँ अटैच्ड वॉशरूम है, इस XYZ इंचज़ की बालकनी है, वो एक्सपेक्ट करते रह गए और बेचारे वो रिकवर ही नहीं हो पाए यार। सो यार कभी कभी निकल जाती है, हो सकता है मुझे बहुत कुछ कट भी करना पड़े, बहुत ज़्यादा निकल जाता है, भावनाओं में बह जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ओके, बांग्लादेश वर्सेस रशिया, विच इज़ बेटर? Russia is not good at all. It's not worth it. Like even आपको पैकेज सेल किए जाएंगे at 18 lakhs for the whole MBBS package, but it's not good. It's the worst. 18 lakhs आया ना? चाइना के बाद it's the worst. हाँ, that's it. Okay. और रीजन? उनका ट्यूशन फीस बहुत कम है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी जेन्युइनली अच्छी है, मतलब एक यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी है, एक और यूनिवर्सिटी, मतलब 3-4 यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में दे आर वेरी गुड, बट बाकी कहीं और मतलब प्रॉब्लम पता है क्या है, लाइक उन्हीं के नाम पे जब नई यूनिवर्सिटीज निकल जाती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कोई ओल्ड यूनिवर्सिटी है तो उसी के नाम पे कोई नई निकल गई एकदम न्यू, ये इंटरनेशनल डैश यूनिवर्सिटी। सो वो मोस्टली वही सीन होता है। और एक आगे भी हम एक सीन समझाऊंगा मैं आप लोगों को कि आप कैसे यूनिवर्सिटी पे ट्रस्ट कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, और एक एकदम डार्क ट्रूथ जो होता है। सो यू शुड गो फॉर बांग्लादेश इफ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी। यू शुड नॉट गो फॉर रशिया, यू शुड गो फॉर एनी अदर कंट्री। क्या ही बोलूं, वहां पे बस फिर एक ही कंट्री बचती है बजट फ्रेंडली, दैट इज
उज़्बेकिस्तान, और इससे पहले बजट फ्रेंडली हुआ करती थी ईरान। लेकिन अब तो ईरान का सीन खत्म है, ईरान और काइंड सबसे ऑफ बड़ी बहुत प्रॉब्लम अनसर्टेनिटीज है यार। अनसर्टेनिटी इस वजह से वॉर सिचुएशन है। और वहां पे दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपका MBBS 6+1 है, चाहे आपको कंसल्टेंट कोई कितना भी बोले, नहीं इट्स 5+1, इट्स नॉट, इट्स 7 years। उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगी जब आपको लाइसेंसिंग एग्जाम वहां का देना पड़ेगा ना, सो दैट यू आर एलिजिबल बैक इन इंडिया फॉर NMC रिकॉग्निशन एंड स्टफ, यू हैव टू अगेन स्पेंड 2 more years। और वहां पे एक और चीज है, वहां पे एक एग्जाम है जिसका नाम होता है ओलंपिया, ठीक है, वो आपको 2 साल के बाद देना पड़ता है। अगर आपका हुआ तो ठीक, आप डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो, वरना आपकी डिग्री ही कैंसिल की जाती है, लेकिन कुछ BDS में डाल दिया जाता है, सो इट्स वेरी स्केरी। एक तो 6+1 ठीक है, और उसके बाद कंसल्टेंट्स 2 साल यू और फॉर 5+1, उसके बाद आफ्टर स्पेंडिंग 6+1 यू हैव टू स्टिल गिव उनका FMG, ताकि यू आर एलिजिबल हेयर लाइक इन इंडिया। नहीं फिर नहीं, उनका FMG नहीं, फिर पहले तो अच्छा, आपने सेकंड ईयर के बाद ही वो ओलंपिया एग्जाम दिया। हाँ। फिर आपने 6 या 7 साल बाद क्या किया, अब उनके लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए 2 साल वहां रेजिडेंट डॉक्टर की तरह बैठो, तब जाके आपको लाइसेंसिंग मिलेगी। मतलब यू हैव टू आई गेस बी एज अ जूनियर डॉक्टर। So it's very effed up situation there in Iran, and Egypt का भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम आता है, 7 साल का MBBS है। अब लाइक कजाकिस्तान would have been a very good option, but उनका भी 7 साल हो गया है। और जो उनके कुछ साल पुराने बैचेस ही है, उनका प्रॉब्लम ये हुआ था, उनको 2 साल फिर से डिग्री में एक्सटेंशन लेना पड़ा। लाइक आफ्टर they appeared for FMG, NMC told them to go back to Kazakhstan and do 2 more years there in Kazakhstan, क्योंकि उनकी जो डिग्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं देती थी, वो PhD डिपार्टमेंट वाले दे रहे थे उनको। अच्छा, सिमिलर टू PhD डिपार्टमेंट इन कश्मीर। हाँ, पानी वाला डिपार्टमेंट दे रहा था उनको कुछ। अच्छा, वेट। We are not defaming anything, but I'm just telling my normal like experience and information you have gathered from surroundings, like your neighbors, your friends, my different friends studying in different universities,